Good evening, all of you. How are you? First of all, happy Kargil Divas. आज एक बहुत ही important day है 26 July. Then happy Parents Day. We all should say hello, hi, namaste, salam. We should all बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स के पैर छुइए. आज का दिन बहुत ही important दिन है. प्लस आज का दिन हमारे लिए भी बहुत ही खास है क्योंकि जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे मिलके आप सबको मजा आ जाएगा. So against all odds, invites you all to be with us, and we'll be sharing very wonderful experiences of a lady who's there with us today. Before that, I would like to introduce you to myself. This is Megha B. Pitwa, a life coach, a spiritual advisor, a certified numerologist, graphologist, tarot reader. I'm also an educationalist. I believe in making a strong base for kids. And I'm a host and host of this show, which you'll be meeting me every Sunday, 6 p.m. Let me introduce you to the most wonderful lady I have met recently or spoken to. Met though it is difficult. I hope you all are safe at home. You're taking care that wash your hands, use sanitizer, stay home, use mask. ये सारी responsibilities अब आप सबके ऊपर है. How you can change and keep yourself safe. So let me welcome Mrs. Pinky Rajgaria. She is Miss Asia 2017. She is a mother of 3 kids. Okay. And no, ma'am. It's a special surprise for everybody. The 3rd kid will be disclosed in the end. So that's the reason I have said 2 + 1. It's a very important statement I have made. Considering, because she's a TEDx speaker and I've heard her there, considering talking about 3 kids. So that's the reason, ma'am, I said 3 kids. She's having 2 lovely daughters and a surprise which she... I would say I have 3 daughters. 3 daughters. 3 daughters. Now it's clear. So welcome, ma'am, to our show. And I want you to start with the quote because मैंने सुना है आपका हर statement, हर interview, हर discussion एक quote से start होता है जो बहुत ही inspiring होता है. And आज का हमारा motive भी women empowerment से जुड़ा है. So thank you, ma'am. आप हमारे show में आए. I hope हम जितने ऑडियंस हमको आज देख रहे हैं या देखेंगे, दे विल गेट कुछ ना कुछ सीख इस शो से. वेलकम मैम. नमस्कार. थैंक यू सो मच मेगा जी, कैटापुल्ट नेटवर्क. थैंक यू सो मच दिनेश जी. थैंक यू सो मच रमाकांत जी. सफलता तब ही मिल सकती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं. That's the my mantra for the life, and I would ask each and everyone to follow this mantra in life. Very good, ma'am. So, ma'am, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे आपके बचपन की लाइफ. यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं बिकॉज मैं इतने टाइम से लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आई विल बी मीटिंग मिसेस एशिया 2017 and I really want all of you to listen to her. I have heard her TEDx speech सुनी है मैंने उनकी and it is so inspiring and सबसे ज्यादा the way you have carried yourself throughout. तो मैम थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में हमसे सबसे शेयर करिए मैम. कैसी लाइफ? I am from the land of Lord Pashupati Nath, Mount Everest and Rudraksh. मेरा जन्म धरान में हुआ है. ये प्रोविंस नंबर 1 का एक छोटा सा गांव है. Like my parents parted ways when I was 6 months old. My elder brother, he raised me. हम लोग काठमांडू शिफ्ट हो गए थे. काठमांडू is the capital of Nepal. तो today I am so grateful, and I would say अगर भगवान से पहले भी अगर मेरे को किसी को नमन करती हूँ ना तो वो मेरे भाई को. He is not there around me. He left me a few years back. He made me understand, the mantra of life. प्यार क्या होता उन्होंने मेरे को समझाया. देना कैसे है लोगों को उन्होंने मेरे को समझाया. The spiritual power, he used to ask me when I was a small kid, he used to ask me to learn meditation.
to preach Hanuman Chalisa, to be around with people. आज भी मेरे को याद है सैटरडे को इस पब्लिक हॉलीडे इन नेपाल, तो सुबह का हमारा पहले हनुमान चालीसा होता था. We used to have bath and my brother used to take me to Pashupatinath and used to make me understand each and every queries of my life, you know. मैं कभी भी कुछ पूछती थी तो वो मेरे को बहुत प्यार से भाई समझाते थे. Like भगवान से पहले भी मैं उनको नमन करती हूँ. आज मैं जहां भी खड़ी हूँ, जिधर भी हूँ, आज उनकी दया दृष्टि है मेरे ऊपर और उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर. He always gave me the first preference in his life, then his children, and I'm really sorry कि मेरे को उनके बच्चों के लिए बहुत वो लगता था कि I was like I used to bully them, you know, like I'm the priority and मेरे को भाई सबसे ज्यादा प्यार करते. बहुत ही प्यार से संभाला मेरे को, एक प्रिंसेस की तरह लाइफस्टाइल दिया था भाई ने मेरे को. He never denied me for anything, you know. और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दूसरे जन्म में भी मेरे को मेरा भाई मिले. और अगर भाई सुन रहा हो तो भाई को एक बात बोलना चाहूंगी कि आई रियली मिस यू माय ब्रदर. मैम वो आप ही के साथ है. मैं what I feel, souls like this are still with you. When you just pray, they will be around you. I also want, you know, हमें मिलने का मौका नहीं मिला, but जो मैंने आपसे सुना है, he has really done a wonderful job and he was a nice man. We all should pray for him wherever he was a very true soul, you know. As like I'm a mother of 2 children, okay, 2 बेटियां है मेरे को. आज उनको भी कितनी बार मैं डांट देती हूँ, कितनी बार मैं समझाती हूँ उनको, पर मेरे भाई ने आज तक मेरे को जोर से पिंकी बोल के जवाब नहीं दिया. उन्होंने मेरे को हर चीज प्यार से सिखाया, यू नो, और हमेशा हर क्वेरीज को अपने बच्चे से पहले मेरे को प्रेफरेंस देते थे. एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम. लाइक आई डोंट नो, भगवान जी से एक ही प्रार्थना करूंगी, प्लीज टेक केयर ऑफ माय ब्रदर. या आई रियली मिस हिम अ लॉट इन माय लाइफ. Ma'am, he is blessed soul, so let's pray for him. And let me understand, ma'am, आपकी hardships जो रही या आपके smooth sailings जो रही हैं आपके life में, once you have grown up, he has taken care of you. The reason आप brother ने आपका take care किया, उसका reason ये था कि your mother has taken a very important decision. We would like to know a small part of that because बहुत important part है. या मेरी मम्मा हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में इंक्लाइंड रहते थे. लाइक शी इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ हनुमान जी. एंड माय डैड वाज मोर इंक्लाइंड इन डेवलपिंग द बिजनेस. तो दैट वे म्यूचुअल कंसेंट के साथ दे पार्टेड वेज. पर मेरी मम्मा आज शी इज नेवर बीन टू अ स्कूल. शी इज 86 years old. उन्होंने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा. एंड शी हैज millions of followers all across the globe. She is the founder of 88 NGOs. Wow. और ये जो मेरी माँ है ना, मैं बोलती हूँ ये सब मोहब्बतों की माँ है. एंड यू नो, कभी भी उन्होंने लाइफ नहीं देखी, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है. एंड whenever I share my things with her कि मम्मा मेरे को ये करना है, मम्मा मेरे को वहां जाना, मम्मा मेरे को यहाँ जाना, she never decline, you know. समझाती है, अच्छी तरह जाओ, अपना केयर करो, एक्सप्लोर करो, सीखो दुनिया से. एवरी डे यू लर्न थिंग्स फ्रॉम पीपल. डोंट डिनाई. आप सीखो, आप आगे बढ़ो, बाकी मैं आपके साथ हूँ. लाइक माय मॉम इज लाइक माय इंस्पिरेशन. हैट्स ऑफ टू हर. ऐसा सुनने में ही लगता है कि आई विश आई कुड मीट हर. कभी आने का मौका मिले और हम वहाँ उनसे मिले, बहुत अच्छा लगेगा मैम. कभी आई होप someday she comes to my place and मेरे को भी अच्छा लगेगा यार. सीरियसली, वरना वहां जाके मिलके आएंगे मैम, उसमें क्या है. हाँ, नेपाल जाएंगे साथ में. आई रियली विश टू, बिकॉज नेपाल जो आप रुद्राक्ष का गढ़ है बोलते हैं उस जगह को. और it belongs to my province, you know. Rudraksh belongs to my province. Like आप देखोगे हमेशा for my event, for my Chingari event, like that's my trademark, you know. I always wear a Rudraksh and I'm a true devotee of Lord Shiva and Hanuman ji. Nice. Ma'am, आपकी marriage किस age में हुई? I got married at the age of 19 after being graduate from Symbiosis College, or after finishing my education. I got married at the age of 19 from the guy like whom I've never met before. Mm-hmm. It was totally an arranged marriage,
And my dad wanted me to settle down in a very big joint family because मैं हमेशा न्यूट्रल फैमिली में रही थी और बोर्डिंग स्कूल में ब्रॉट अप थी. तो पापा का ख्वाब था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में मेरे को प्यार मिले, मोहब्बत मिले, मैं सीखूं उनसे और एक परिवार का माहौल बना रहे. तो इसीलिए लाइक आई सेटल डाउन इन इंडिया. ओके, तो फिर वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे अबाउट योर फैमिली, योर किड्स? इतना जल्दी शादी हो के आपके माइंडसेट में क्या चीजें आती होंगी कि इतनी जल्दी शादी हो गई? कैसा एक्सेप्टेंस मिला आपको आपके फैमिली से, आपके हस्बैंड से? हाउ वाज इट मैम? आई एम द एल्डेस्ट daughter-in-law of my family. मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय पीपल वेर हायर फॉर मी. एक हमेशा बड़ी बहू का टैगलाइन था. तो सी जॉइंट फैमिली में क्या होता है ना, आपको एक्सेप्टेंस भी मिलता है, तो आपको कितना यू नीड टू बी विद देम आल्सो. उनका एक ट्रेडमार्क. या सो मैम, आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम अ नॉर्मल सिंपल वुमन टू अ लेडी हु इज नाउ फेमस एज मिसेस एशिया, उसके बारे में हमें कुछ बताइए मैम. सी क्या होता है ना, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है. देन यू ट्राई टू फॉरगेट योर ओन आइडेंटिटी. आप अपने आप को भूल जाते हो. भगवान की दया से, ऊपर वाले की दुआ से मेरे को गुड़िया हुई. लाइक आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 girls. You know, they made me understand. Like I used to share my journey with her. Like कि मेरे को कुछ करना, मेरे को आगे बढ़ना है. Then I joined the school as a teacher. Then afterwards I was promoted as a child counselor in a school. Wow. पर मैंने बोला कि ये एक monotonous life हो गई. I need some change in my life. And then I shared my dream to my elder daughter कि बेटा पता नहीं, like I always बचपन से था कि मैं ramp walk करूँ. I have done a graduation in child psychology और मैंने डिप्लोमा फैशन डिजाइनिंग में भी किया हुआ. तो I used to design the clothes for the showstopper. हमेशा showstopper के लिए मैं कपड़े डिजाइन करती थी. तो मैंने बोला ऐसा कब दिन आएगा कि लोग मेरे लिए डिजाइन करेंगे और मैं showstopper बनूंगी शो के. तो then she said, Mama, age is never a number, age is a myth. आप डेफिनेटली आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. देन मैं तो आप बोलते हैं ना, बच्चों का अपने से जर्नी अपना शेयर कर देते, अपने ख्वाब शेयर करते. आई नेवर न्यू कि माय डॉटर वाज सो सीरियस अबाउट माय ड्रीम. एंड विदाउट माय कंसेंट शी फिल्ड अप द फॉर्म फॉर मिसेस इंडिया. Yeah, she filled up the form for Mrs. India. I was in a trip with her for Bali. On social media protocol, I came to know I have been auditioned as a finalist of Mrs. India. I got a shock of my life. I'm like, what's happening with me, and who has done this prank with me? So she had that kind of smile, you know, कि मम्मा ऐसे आपका तो ख्वाब था ना. तो मैंने बोला ख्वाब था, मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जाना है. And you know the kind of family I belong, the kind of atmosphere I'm around, like will I be able to stand over there? She's like, you never know, you stand out as a winner. बोली इतने बड़े ख्वाब मत दिखाओ मेरे को. Then finally I made my family understand, I made my husband understand, let me go ahead, let me try my dreams. क्या पता विनर बन जाऊं, या तो अपने ख्वाब पूरे होने में मेरे को पता चले कि आई एम नॉट ऑडिबल फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. एक एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, एक एक्सपीरियंस मिल जाए. Then finally with all the I took a training for 2 months, all the proper kind of training. Then I went ahead for Mrs. India. आप लोग की सबकी दुआ से, सब के आशीर्वाद से, सबके बड़ों के आशीर्वाद से I won the 3 stars over there. Then उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं. From there Mrs. Asia, then from there Mrs. Universe, and won the most prestigious title, Mrs. Universe Business Lady of the Year. That's how my journey has been there for the pageant. Yeah. Very good, ma'am. एक छोटी सी चीज मैं वापस पीछे ले जाऊंगी. I have seen some photographs of yours जहाँ पर you have a good, you बोलते हैं ना, अच्छा खासा फिजिक है, और उससे आज मैं आपको देख रही हूँ जीरो फिगर. उसका रीजन ऑलमोस्ट मैम, उसका राज बताएंगे प्लीज. यहाँ पर जितनी लेडीज हमको देख रही हैं
उनको ये जानने का हक है कि हाउ हैव यू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव 2 डॉटर्स, मतलब आपने प्रोड्यूस किए, तो इतना फिट कैसे हैं आप? See, I'll tell you my journey. I had a first miscarriage. Before Priya, I had a miscarriage. To conceive a child, I had to take steroids. Oh. On my daughter's first birthday, I weighed 98 kg. My God, 98. 8 kg. Trust me, Megha, I was so scared to see myself in the mirror, you know. I used to hide away with all the social events. I was so scared, kind of. I never used to come out from my room. Mm-hmm. Then I went ahead with my psychiatrist meet and all. I was diagnosed as a depressed woman. Then my mom came to visit me, you know. She made me understand the true purpose of my life. She made me understand you cannot give up life. आप अपना लाइफ गिव अप नहीं कर सकते हो. आपका पर्पस क्या है? ऊपर वाले ने आपको एक पर्पस के साथ नीचे भेजा है. When you are my daughter, you have to stand out. You have to bounce back in life. Her word, you know, triggered my mind. Then finally I joined a gym, and with a proper lifestyle and with a proper diet, within the span of 8 months, I weighed 58 kg. 8 months, 58 from 98. Tremendous, ma'am. ऑडियंस आप लोग देख रहे हैं, मैम ने ओनली 8 months इट टेक्स. मैम, ये मैंने आपसे जब कल बात की थी तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपने आप को 8 months देके देखती हूँ, शायद मैं अपने वो ओल्ड डेज में पहुंच जाऊं. एंड 6 month में हो जाओगे मेघा जी, आप 6 month में हो जाओगे. You know, it's all in mind. Exactly, it's in mind. It's all in mind. You need to play with your mind. You need to reach with your mind. सब कुछ दिमाग में है. वेरी ट्रू, एग्रीड. ये मैं सबको काउंसिल करती हूँ मैम. एंड बोलते हैं ना, पर वो घर की मुर्गी दाल बराबर, जब अपने ऊपर आता है तो डॉक्टर खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो तब हमें आप जैसे लोगों की जरूरत होती है कि आप हमारे माइंड में एक अच्छा सा इंजेक्शन लगाए. एंड जितने ऑडियंस हमको देख रहे हैं मैम, मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि इट इज रियली नॉट डिफिकल्ट टू यू नो लूज डाउन योर वेट. आप वी कैन लूज वेट लाइक, मतलब बोलते हैं ना, बहुत आसानी से, प्रोवाइडेड इट इज सेट हियर. तो कुछ बताइए ना मैम. आप जो सोच सकते हो ना, आप वो सब है. सोचना आपको इधर से है. करेक्ट, करेक्ट. तो मैम थोड़ा सा और बताएंगे आप कैसे आपने अपने माइंड को ट्रेन किया. एक मैंने सुना वो अलाइव एंड किकिंग वाला लाइन मैंने आपके टेडेक्स पे सुना था. तो आप कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे कि दे शुड स्टार्ट you know considering themselves as fit from today? You get in life what you ask for. आपको वही मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट करोगे. I meditate a lot. तो मैं हर किसी को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अपने आप को खुश रखो. ये हमारी जिम्मेदारी है. अपने आप को खुश रखना, अपने आप को फिट रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है. और हर इंडिविजुअल को ऊपर वाले ने एक पर्पस देके भेजा है. तो ट्राई टू फुलफिल दैट पर्पस. और वो पर्पस क्या? अपने आप को खुश रखना. आप अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप को फिट रखोगे, तो यू कैन मेक योर सोसाइटी मूव फिटर. यू कैन मेक योर कंट्री पीपल मूव फिटर. बिकॉज आप बीमार रहोगे तो आपको देख के आपकी फैमिली वाले बीमार हो जाएंगे, या यू वुड गेट इनटू अ डिप्रेशन जोन. दैट्स ट्रू, राइट? वेरी ट्रू मैम. सो you mean to say that you love yourself? One first rule of life is love yourself. So if you love yourself, then only you can love your family, and then you can love your society. So that is how it goes on. You need to love yourself and you need to pamper yourself. जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, आप सब बोलते हैं ना, आप अपने लिए, खुद के लिए, आप अपनी बॉडी को समझो. पहली बार तो अपने आप को समझना और अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी होता है. फिर उसके हिसाब से जस्ट मेक योर स्केड्यूल. आपको जो अच्छा लगता है वो करिए. इट्स नॉट यू हैव टू गो एंड बर्न योर एनर्जी इन जिम. आप योगा करके भी कर सकते हो. एंड यू कैन ट्रेन योर माइंड to follow the few tricks of meditation. You would be happy. Yeah. So basically meditation should be a lifestyle now, not a out of choice. वो lifestyle में ही inbuilt हो जाना चाहिए. I hope everyone follows this, because ये pandemic में भी आपने देखा होगा कि mental stress कितना,
एंड हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड, यू नो, आपको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप दुनिया को समझा पाओगे ना. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. अगर मैं अपने आप पे काम नहीं कर पाती थी तो मैं दुनिया के लिए कैसे इंस्पिरेशन बनूंगी. And that's what we have seen. Ma'am, 98 to 58 is like 40 kgs, if I'm not wrong. Yeah, and big journey. Whenever I see my picture, I definitely adore that picture of mine, like my daughter. You and your daughter, yes, I have seen that picture. And it was like, and then I was not able to, you know, recognize कि वो आप ही हो. And then थोड़ा सा गौर फरमाया. People ask me, ये तुम्हारी कोई बहन है, ये तुम्हारी कोई फैमिली वाली है? नहीं, ये मैं ही हूँ, पिंकी राजगढ़िया. You know, I've seen all the upside down in my life. That's how you become more mature in life. तो मैम डिप्रेशन हिट बिकॉज ऑफ वेट हुआ था कि और भी कोई रीजंस थे आपको? क्या होता है ना, आप पे एक तो आप 19 इयर्स के एक आई मीन इमैच्योर एज में आपकी शादी हो जाती है. Exactly. You are not mature with your mind. True. और मैं हमेशा हॉस्टल लाइफ में रही हुई हूँ, बोर्डिंग में रही हुई हूँ, तो ये हमने वही लाइफ देखी हो. तो धीरे धीरे यू गेट इनटू जॉइंट फैमिली, फिर एक बच्चा मिसकैरेज होना, दूसरे को कंसीव करना, तो आप अपने आप को बहुत कंप्रेस कर लेते हो. आपकी लाइफ वो एक रूम बन जाती है और आपने कभी वो लाइफस्टाइल जिया नहीं है. आपने हमेशा फ्री बर्ड की तरह रहे हुए हो. तो वो धीरे धीरे यू नो वैक्यूम हो जाता है दिमाग में. आप अपने आप को उसी तरीके से देखने लग जाते हो. वो तो एक दिन, 2 दिन, सालों साल यू गेट इनटू दैट जोन. या करेक्ट. सो अर्ली एज ऑफ मैरिज इज वन ऑफ द रीजंस. द मिसकैरेज इज वन ऑफ द, आई थिंक नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट. इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं ना मैम, 30-35 के बाद भी शादी करने में दे हेजिटेट. आपका जो जनरेशन चल रहा है, दे वांट टू रियली लिव देयर लाइफ एंड देन वांट टू गेट मैरिड. तो आई मीन इट्स गुड, इट्स इंडिविजुअल चॉइस. एग्जैक्टली. तो कुछ लोग हैं, मैं आई मीट पीपल वेयर दे से कि कुछ को जल्दी शादी करनी होती है बिकॉज दे वांट अ कंपेनियन पार्टनर बिकॉज XYZ reasons, but some say I want to do whatever I want. वो सब खत्म करने के बाद मैं शादी करूंगी या करूंगा, ऐसा हो जाता है. It's all individual choice. मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, जिसको जिसमें खुशी लगे वो काम करे. So अपने आप की सबसे पहले पर्पस ऑफ लाइफ अपनी खुशी देखिए. तो पिंकी जी हमको यही बताना चाह रही हैं कि just search your soul purpose of life and start loving yourself and see the drastic change. That's what I will start doing from today. जो inspiration मेरा तो main reason है मैम, weight loss. Rest things can follow. I mean 70% the diet works, 30% your work schedule. Just concentrate on taking proteins. I think you would definitely lose weight. or either fit कर लो कि हाँ, I'm losing weight. Start manifesting that. Yeah, start manifesting that and make a vision board. Definitely it works out, you know. Okay. So मैम हम लोग पीछे से फिर वापस आगे आते हैं. तो आपके जो जर्नी जो 2017 से जो आपकी स्टार्ट हुई है, आज 2020 है, उस जर्नी के बारे में आप बताइए. अब मैं आपकी वो थर्ड डॉटर का डिस्क्लोजर चाहूंगी. मैंने स्टार्टिंग में बोला, एम्फसाइज किया कि नहीं, यू हैव 3 kids. उसका रीजन यही था कि आई वांट यू टू शेयर अबाउट योर थर्ड डॉटर, जो मोटिव पे आप काम कर रहे हैं. See, once I won the pageant, I got many offers from web series and teledrama. Okay. But पता नहीं, somehow अंदर से खुशी, मेरे को पता था कि मैं अगर ये फील्ड में चली भी जाऊं तो मेरे को खुशी नहीं मिलना उसमें, क्योंकि I was not comfortable. फिर I underwent a lot of thinking in my life. I was fortunate enough to be appointed as a brand ambassador for VDI school. It's situated in Malad Station, Malad West. Okay. We work for differently able children. And I'm a brand ambassador of Acid Attack Victim Foundation also. We work for a acid attack survivor. That's very nice. फिर मैंने एक बात देखा कि अभी कुछ तो करना, पर लड़कियों के लिए करना है. बहुत सोचा, बहुत समझा. Then finally वो दिन आया. Then I gave a birth to a third girl child of mine. चिंगारी शक्ति फाउंडेशन. That's it. उसी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि थर्ड डॉटर शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय यू.
तो थैंक यू सो चिंगारी मच। शक्ति फाउंडेशन के बारे में मैम प्लीज सबसे शेयर करिए, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, कभी कभी जुड़ना भी चाहते हैं, कभी कभी जानना चाहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु रियली वांट टू सर्व। तो सही एसोसिएशन, सही फाउंडेशन मिलना बहुत जरूरी है। सही सोल पर्पस बिहाइंड दैट शुड बी देयर। तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे अगर आप अच्छे अपने एक्सपीरियंस और जो आपके मोटिव्स हैं शेयर करेंगे मैम हमारे साथ। आइए हम चिंगारी को सुलगाए, अनैतिकता को समाज से दूर भगाए। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब मिसेस यूनिवर्स के लिए गई थी ना, देयर आई रेज द 2 कॉज, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस एंड स्टॉप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ में एक माँ बच्चा पैदा करती है, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस अराउंड, एक आप बेटा पैदा करते हो और एक बेटी पैदा करते हो, तो बहुत अलग होता है। बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में जो माइलस्टोन रहा हुआ तो वो आपकी एक ताकत बन जाती है। तो इसी के लिए आई रजिस्टर्ड माय फाउंडेशन, चिंगारी शक्ति फाउंडेशन। ये आपकी भी सोच है, ये मेरी भी सोच है, ये हम सब की सोच है। और चिंगारी ये हमारी ताकत है। वी ट्रेन गर्ल्स फॉर द सेल्फ डिफेंस एरिया। वी वर्क ऑन ऑल द बीएमसी स्कूल्स। अभी कनोसा कॉन्वेंट स्कूल में भी हमारा ये था, मेडिकल कैंप था, सेल्फ डिफेंस कैंप था। बीएमसी स्कूल में भी हम काम करते हैं। पाली विलेज में भी जाके हमने बहुत काम किया। इवन आई वर्क फॉर द नेपाल ऑल्सो स्कूल्स। और मेडिकल कैंप्स के ऊपर काम करते हैं हम लोग, या हाइजीन कैंप या डेंटल कैंप लगवाते बच्चियों के लिए। आई एडवोकेट ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो हम बेटी पैदा करेंगे, फिर उसको हम पढ़ाएंगे, फिर हम उसको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना वो सिखाएंगे, फिर हम स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे कि एक अच्छी नागरिक बने। बोलते हैं ना, एक सक्षम नागरिक बने हमारे कंट्री की। तो दैट्स द मेन सोल पर्पस ऑफ चिंगारी शक्ति फाउंडेशन। एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन टू कम अहेड and support your foundation, चिंगारी शक्ति फाउंडेशन. It's not my foundation. ये हर एक नारी का फाउंडेशन है, हर एक लड़कियों का फाउंडेशन है। ये तो मेरी सोच है, मैंने अपनी सोच को बस एक फाउंडेशन के रूप में दिया है। मैम ये सोच सबके साथ जानी चाहिए। सब जो आजकल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो मोटिव है मैम, इवन मेरा बहुत ही क्लोज है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। एंड मेरा तो एजुकेशन पैटर्न ही है, मेरी पूरी 20 इयर्स की जर्नी हैज बीन इनटू एजुकेशन। इसलिए मैंने बोला यस मैम, आई एम एन एजुकेशनलिस्ट। एंड बाकी ऑकल्ट तो मेरा बोलते ना पैशन है, जस्ट टू सर्व द काउंसिल पीपल, जो लोगों को जरूरत होती है। दिस इज व्हाट मेरा मेन एम यही है कि हर बच्चे की ना नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। रूट्स हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, रूट्स हैज टू बी स्ट्रांग। तो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, जो स्कूल में तो मैम एक पैटर्न चलता है, बट आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज जो बच्चों को चाहिए होती है, जो उनका बेस क्लियर करे, वो मेरा मोटिव है। एंड मैंने जब आपकी चिंगारी फाउंडेशन के बारे में सुना तो मुझे लगा कि मैं किस तरीके से जुड़ के आपके स्किल डेवलपमेंट में या किसी चीज में भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। You are most welcome and I am so grateful to you मेघा जी कि आपने सोचा चिंगारी के लिए, और ये आपकी चिंगारी है, मेरी तो एक सोच है बस। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हमको सुन रहे हैं वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और कुछ अलग करें। जस्ट घर पे अभी तो बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पर घर पे बैठ के अपनी सोच बदलें, स्ट्रैटेजाइज करें, बिकॉज ये कोविड टाइम है जिसको हमें स्ट्रैटेजाइज करना है, चीजें आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ बदल सकते हैं मैम। और हर इंडिविजुअल के ना सोल पर्पस होता है लाइफ में। एग्जैक्टली, वो ढूंढना जरूरी है। या एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स योर सोल पर्पस एंड आपका लाइफ का एम क्या है। जैसे आई स्टार्टेड विद पैजेंट जर्नी, मेरे को आई वाज गेटिंग ऑफर, पर मेरे को पता था कि वहां मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना है, बिकॉज मेरे को अगर मैं जाके भी आ जाती थी तो वो रात को सुकून की नींद नहीं सो पाती थी। जो सुकून की नींद लड़कियों के लिए काम करके मेरे को मिलता है। एंड देयर माय लाइक, ट्रस्ट मी मेघा जी, you know, whenever I have been announced as a founder of Chingari Shakti Foundation, the kind of satisfaction I get in my life, definitely being appointed as a Mrs. Asia, my hard work, like मेरे को समझ में आता है, पर जितना मेरे को चिंगारी से अटैचमेंट है शायद
मेरी दोनों बेटियां मेरे को बोलती है, हमेशा ताना देती है कि मम्मा आपको तो हमेशा सुबह से लेकर रात तक एक चिंगारी के लिए क्या करना क्या नहीं करना वो दिखता आपको। मैम ये होता है पैशन बेसिकली। ये मैं आपके साथ रिलेट कर सकती हूँ इस पैशन को, बिकॉज जब मैं आज यहाँ पर हूँ सो मेरा पैशन है। मेरे घर में सब बोलते हैं सब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब आपका सेशन होता है ना आप चुपचाप बिल्कुल टाइम से आधे घंटे पहले जाके बैठ जाते हो ना, चाहे कुछ भी हो। सो इट इज मैम, आई फील हम सबके पीछे ना एक चीज का पैशन होना बहुत जरूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब पैशन आता है ना, तो जैसे अब मेरा क्लासेस होता है, आई टेक फ्यू क्लासेस ऑफ फोनिक्स और एनी सेशंस ऑफ टैरो ग्राफो न्यूमरो की जब लेती हूँ तो सबको बोलती हूँ नो डिस्टर्बेंस, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम डूइंग एंड सीरियसली Because you are passionate about your journey, right? Yes. That's why you dedicate your time and you dedicate your energy. 100%. Yeah. क्योंकि हर इंडिविजुअल को ये ढूंढना चाहिए कि आप क्या चीज के लिए पैशनेट हो। एग्जैक्टली मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को यही इंस्पायर कर सकते हैं कि आप किसी को हेल्प चाहिए तो वी आर देयर, वी आर देयर। तो आप लोगों को कैसे रीच आउट करते हो जब ये they can put me a message on Facebook, on Instagram. Definitely I personally go and see all the DMs and all the my DMs and messages on my social media protocol. Yeah. Okay. And I definitely answer back. Yeah. I make it sure. Yeah. That's Each and every one I answer back. वो connect बहुत जरूरी है। And I will like to tell my audience, whenever you need help or you want to help Chingari Foundation, please DM ma'am Facebook पे, she is easily available. मेरे जो friends हैं, she is in my friend list, so you can just easily search from my Facebook also and just connect to her. Let's see how bigger we can do for a larger cause we can work. मैम आज जो कारगिल दिवस है और जो आपका रिवर मार्च है, आप उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे, जो इवेंट आप इससे पहले River March, I think since the day one I have been very attached with River March and they are working very hard to for the 4 rivers of our Mumbai and अभी आज उनके साथ ही मेरा लाइव सेशन था। और कारगिल दिवस के लिए तो सत नमन है हमारे वीर योद्धाओं के। आज वो बॉर्डर पे है तो हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, आज उनकी वजह से हम जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन उन माओ को सलाम, उन योद्धाओं को सलाम। सही बात है मैम, वो लोग जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, और इस टाइम में तो मैम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड टाइम को कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए उनको? डर भी है लोगों के अंदर। वी हैव मेट लॉट ऑफ सोशल एक्टिविस्ट एंड डॉक्टर्स ऑन द शो एंड हम लोग ने कोशिश की है। कल हमारे साथ में एम्बुलेंस डायल 4242 वाले थे, उन्होंने बताया। SOS मुंबई वाले लोग थे जिन्होंने हमको बताया कि हाउ दे आर हेल्पिंग आउट टू रीच आउट, वो बेड्स अरेंज करना या एम्बुलेंसेस अरेंज करना। तो ये कोविड टाइम में लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है, जो हमारी डॉक्टर अनीता हैज आल्सो गिवन कि डरो मत, अगर हॉस्पिटल जाना है तो जाओ, बट प्रिकॉशंस आप कैसे लेते हो इस पीरियड में मैम? सी पहली बात तो यू वेयर अ मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। हमारे हिंदुस्तान के जो अच्छे फैब्रिक्स है उनके आप मास्क पहनो, दोज आर वॉशेबल वंस एंड फ्रीक्वेंटली कीप वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप। और अगर आप जरूरत नहीं है तो घर के बाहर मत जाइए। करेक्ट, बिकॉज जो सड़कें वही रहने वाली है, जो चीजें वही रहने वाली है। एक बार इसका फियर निकल जाता है, लेट्स बी मोर एक्वेंट विद दिस थिंग, देन वी कैन मूव आउट। तो डरो मत, अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो आई मीन विजिट योर डॉक्टर एंड आस्क हेल्प विद योर डॉक्टर। या तो जो मैम बोल रही हैं आई थिंक हम सब जानते हैं, बट उनका रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लोग लाइटली ले लेते हैं चीजों को और इसीलिए अफेक्ट हो जा रहे हैं या आजू बाजू की सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई फील मैम की बात सुनिए आप लोग प्लीज एंड डू द नीडफुल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टुडे पेरेंट्स डे भी है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा और अपनी मदर फादर के बारे में जो आपके
अंदर दिल में है, जो इमोशंस कनेक्टेड है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे लर्निंग्स हो, वो हमसे शेयर करिए मैम। ये जो नियति का काढ़ा पिलाया है मेरी माँ ने, वो आज तक मेरे साथ बरकरार है। पापा, जो पेशेंस मेरे में 1% है, आई थिंक वो मेरे डैड की वजह से है। और भगवान जी से भी पहले मैं मेरे मम्मी, मेरी माँ, पापा और भाई को नमन करती हूँ। आज उनकी वजह से, उनकी आशीर्वाद से मैं थोड़ा सा कुछ कर पाती हूँ। आई लॉस्ट माई डैड फ्यू इयर्स बैक एंड आई वाज वेरी वेरी क्लोज विथ माई डैड, वेरी क्लोज विथ माई डैड। पापा ने हमेशा मेरी इच्छाएं को पूरा किया और आई वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस किड। हम 4 बच्चे थे। आई हैड 3 ब्रदर्स एंड अ लोन डॉटर में, पर पापा की प्रायोरिटी हमेशा मैं होती थी। आई नो भाई लोग को बहुत गुस्सा आता था ये बात पे, पर आई ask each and everyone, please 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 love your parents. And you know, भगवान तो आपने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा भगवान, राइट? भगवान का रूप होते हैं माँ बाप, पेरेंट्स। बिल्कुल। या आप अगर लाइफ में अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो तो दुनिया में आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। Parents' blessings are the most powerful blessings. Trust me. I request each and everyone, please 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 respect your parents, please, because they are God for me, they are God for you, they are God for everyone. पेरेंट्स के लिए तो जितना कहें उतना कम होता है मैम। पेरेंट्स कभी अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं करते। एग्जैक्टली, दे आर कभी गिवर्स। एक्सपेक्टेशन नहीं करते, ट्रस्ट मी। पर हमारा एक फोन, हमारा उनको पूछना कि आप पापा ठीक हो ना, मम्मी ठीक हो ना, यू नो, फॉर देम वी आर लाइफ। हम उनकी जिंदगी है। आज उन्होंने हमको ये संसार में लाया है, वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। एंड सबको नमन, सब माँ बाप को मेरा नमन है, सब माँ बाप को मेरा हैप्पी पेरेंट्स डे टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स हो गया। सो पेरेंट्स जितने आप देख रहे हैं, वी ऑल लव यू। एंड मैं भी मेरे पेरेंट्स को लाइव विश करना चाहूंगी, हैप्पी पेरेंट्स डे। मेरी उनसे जस्ट एक मैसेज पे ही बात हुई है, एंड आई विल बी कॉलिंग देम आफ्टर द सेशन। एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, बिकॉज नॉर्मली जो देखा जाता है ट्रेंड है कि ओल्ड हो गए तो उनको जो एज गैप होता है पेरेंट्स के बीच में, जैसे कि हमारा जनरेशन और उनकी जनरेशन गैप जो होता है, उस वजह से हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं। तो जिस वजह से आई थिंक बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से उतने कनेक्ट नहीं हो पाते। अब मैं एक ही चीज बोलूंगी, कनेक्ट हो ना हो मैम, वी शुड जस्ट listen them out, you should talk to them, give 10 minutes of your the entire day, that is more than enough. क्या बोलते हैं मैम? There is a communication gap, I definitely agree to that. अभी my mom is 86 years old, okay? She's never been to school, उनको पता नहीं क ख ग क्या होता है। पर मम्मा ने हमेशा मेरे को सिखाया कि आप अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हो, आप जाइए, आप जाओ, घर के बाहर जाओ, आप देखो, आप सीखो। और पेरेंट्स को क्या चाहिए, आप एक फोन कर देते हो, वो खुश हो जाते हैं, उनका दिन बन जाता है। And they are so happy indeed, they are so happy from inside. Trust me, when my daughter calls me up, if I'm into a urgent meeting also, I answer a phone कि हाँ बेटा तू ठीक है ना, मैं ठीक हूँ। उतने में I feel मेरी daughter खुश है। So you can understand the kind of pain parents goes through. Better to connect with them, to make them understand. And as हम पेरेंट्स के लिए क्या बोले, वो पेरेंट्स ने तो हमको बोलना सिखाया है, never answer back to your parents, never answer back to your parents, understand them. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है ना मेघा जी, आप उनको समझाइए, वो आपके पेरेंट्स है, डेफिनेटली समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। आज हम हमारे बच्चों को भी समझाते हैं ना, हम हमारे स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं ना, वी कीप पेशेंस, हम पेशेंस से हमारे बच्चों को समझाते हैं। तो व्हाई कांट वी बी पेशेंस विद आवर पेरेंट्स। मैं हर स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, आई नीड यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एग्जैक्टली। तुम मेरी वजह से ये दुनिया में नहीं आए हो, तुम तुम्हारी पेरेंट्स की वजह से ये दुनिया में आए हो। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स,
That's the most essential mantra of being successful. Trust me. अब जितना जल्दी ये बात को अडॉप्ट करते हो लाइफ में, उतनी जल्दी आप एक सक्सेसफुल बन सकते हो. ट्रू मैम. इस बात पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई. आई डू मिड ब्रेन एक्टिवेशन सेशंस, तब मैं ये बच्चों को दिखाती हूँ बिकॉज जैसे मिड ब्रेन के लिए ना इट्स बेसिकली ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चों की ना थर्ड आई एक्टिवेशन होता है उसमें. तो बच्चों की इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है. तो उस सेशन में ना मेरी एक स्टोरी रहती है, उसमें एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें एक पेरेंट बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनको सुनाई कम देता है. ठीक है, तो जब उनको सुनाई कम देता है तो वो अपने बच्चे से पूछते हैं ये क्या है. तो बच्चा एक बार बोल देता है बहुत आराम से, तो वो दोबारा बोलते हैं ये क्या है. फिर से बच्चा उसको बता देता है. ऐसे करीबन 4, 5, 6 बार वो पेरेंट ने पूछा. तो जो उनका ग्रोन अप चाइल्ड है, चाइल्ड भी नहीं बोलेंगे, मैन है, वो अपने फादर को बोलता है क्या यार सुन नहीं सकते हो आप मेरी. दिस इज जस्ट एक पूरी स्टोरी है इसमें. तो जब वो रिएक्ट करता है ना, तो वो बूढ़ा फादर उठ के वहां से चला जाता है, अपने रूम में जाता है. दे वर सिटिंग इन अ गार्डन स्पेस जो होती है उधर. वापस आता है, एक डायरी लेके आता है. उस डायरी में लिखा होता है मेरे से इसने 10 बार पूछा ये चिड़िया कौन सी है, मेरे से 20 बार पूछा ये वो क्या है. मैंने हर चीज हर बार उतने ही इंथुजियाज्म से जब तुम छोटे थे ये हमने तुमको बताया, बट आज जब हम बड़े हो गए हैं और हमारी सुनने की तकलीफ हो चुकी है, तब आप हमको ये हम पूछ रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं रहा. नॉर्मल मतलब ये स्टोरी मैंने बच्चों को जब दिखाती हूँ ना मैम, वो बच्चे लोग दे स्टार्ट सेइंग दैट यस आई लव माय पेरेंट्स एंड आई विल नॉट डू दैट. बिकॉज आज जो पेरेंट्स एफर्ट लेते हैं, हमको इतने से छोटे से लाते हैं और उसको इतना बड़ा करने के बाद जब उनका रिएक्शंस बहुत बुरे रहते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड. कभी कभी मैं मेरी मदर से नाराज हो जाती हूँ, तो बाद में लगता है नहीं यार मम्मी है, इट्स शी इज ओल्ड. अब मैं तो बोलती हूँ अब शी इज अनदर चाइल्ड बेसिकली. शी आई कंसिडर एज अनदर चाइल्ड. आपको जब तक आपके पेरेंट्स होते हैं ना, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि हाउ ब्लेस्ड यू आर. True. मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर लाइक माय डैड ही हैड अ नी सर्जरी. ब्रिज कैंप में उनका नी सर्जरी हुआ था. तो आईसीयू में उनको पूछा गया था. माय ब्रदर वाज आल्सो देयर, आई वाज आल्सो देयर, माय हस्बैंड वाज देयर, माय फादर इन लॉ वाज देयर अराउंड इन फ्रंट ऑफ द आईसीयू. तो उनको सर्जन ने पूछा गया था आपको किससे मिलना है. आई स्टिल रिमेम्बर दोस वर्ड्स, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की एक बार शक्ल दिखा दो. और दूर से मैं उनको एक स्माइल दे रही थी और ही वाज लाइक देख लिया. एंड ट्रस्ट मी, आई मीन माँ बाप भगवान के रूप होते हैं. माँ बाप से बढ़कर ये दुनिया में कोई नहीं है. प्लीज 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 रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. एग्जैक्टली. थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया है मैम, बट ये बात सुन सुन के हमारे अंदर एक चिंगारी जग रही है कि वी शुड रियली रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, लव देम, एंड जहां गलती हो जाए माफी मांग लो. एंड आई होप पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो माफ करने में भी बहुत जेनरस होते हैं. सो ये पेरेंट्स बनने के बाद मेरे को भी एहसास हुआ है कि मेरे माँ बाप ने भी कितना सैक्रिफाइस किया होगा लाइफ में टू गेट मी गुड एजुकेशन फ्रॉम big schools and good colleges and to get me married to a good family. They have sacrificed a lot in life. We should always realize our parents' sacrifices in our life. Tell us something about your daughters now. My daughters are my backbone. My daughters are my lifeline. I owe each and every breath to my daughter and my mom. Today where I stand, they are like hard rock pillar of me. मेरे को पीछे मुड़ के देखना अलाउड ही नहीं है. इफ दे आर अराउंड मी, आई वुड टेल देम मेरे से ये नहीं होता है. लाइक मेरी बेटियां हमेशा बोलती है नो वर्ड तो आपके लिए बना ही नहीं है मामा, आप ये नो वर्ड हटा दो. और उनसे बढ़कर मेरी माँ है. तो these 3 ladies of my life are my hard rock pillar. Like, और आज जो भी मैं हूं ना, उनकी वजह से हो. वो मेरे को गिरने ही नहीं देते. गिर गए फिर उठो, फिर भागो, गिर गए फिर जाओ तुम. मैम आपका हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? बिकॉज आपको इतना सब करना पड़ता है, आपकी फाउंडेशन है,
you have so many events to take care, जब आप करते होगे, फील्ड पे रहते होगे, how your husband supports you? My husband has always been supportive to me. He knows me. I'm a very जिद्दी टाइप की औरत है ये. ये जो सोचती है वो करती है. ठान लिया तो ठान लिया. ठान लिया तो ठान लिया. ये मानने वाली तो है नहीं. सच्चा इसको धक्का खाने भेज दो. He supports me a lot. He supports me with my vision. He supports me with my journey. He'll always tell me, है ना, एक ही बात बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम जाओ. Awesome, ma'am. Awesome support है आपके पास तो. God bless you. इतना अच्छा support. I think I'm also blessed with that because आज जो कर पा रही हूँ वो just उनके support की वजह से ही है. अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं हो, आपका रूट्स आपका स्ट्रांग नहीं हो, तो लाइफ में सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सीरियसली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट ही आज हमको यहाँ पर साथ में मिला रहा है मैम. तो एक ताली तो बनती है अपने फैमिली के लिए, एक सैल्यूट बनता है उन लोगों के लिए. मैम मुझे बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी चिंगारी फाउंडेशन को लेके आप और क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं मैम? We would be launching a education project also and hygiene project also soon. Okay. बस ये है कि if any girl gets inspired by Chingari Shakti Foundation and she feels safe, I would be so grateful to God. I would be so grateful to all the women power. हमारा एक ही मकसद है, हमारी कंट्री की हर लड़कियां सुरक्षित रहे, हर लड़कियां शिक्षित बने और हर लड़कियों में स्किल डेवलप्ड रहे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी रह पाए. बस ये हमारी चिंगारी का मकसद है और आप हमारे साथ हैं. बिल्कुल मैम, हम नहीं, जितने लोग आज हमको देख रहे हैं और जो देखेंगे वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोजेक्ट पे. एजुकेशन वाला सुन के तो मेरे को ज्यादा एक बोलते ना एक्साइटमेंट आया कि आप एजुकेशन है, हाइजीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस, हर एक लड़की को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत जरूरी है. बिकॉज यू नो वायलेंस बहुत है लाइफ में. बहुत वुमन हैज टू गो थ्रू अ लॉट इन लाइफ. Yeah, we need to stand firm on the ground. We need to make them strong basically. And देखो, लड़की स्ट्रांग तो होती है, लड़की में चिंगारी तो छिपी हुई है. बस वो चिंगारी को सुलगाने का काम चिंगारी शक्ति फाउंडेशन करती है. क्या बात है मैम, सुपर. I agree with you. Yes, we are born blessed and we have that kind of talent within us. एक करने की जरूरत है. एक औरत माँ बनने की ताकत रखती है ना, तो वो दुनिया कॉन्कर कर सकती है. तो प्लीज 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 उसकी जो ताकत है ना, और समझो और उसको सही प्लेटफॉर्म दो और उसको सपोर्ट कर. बिकॉज वो तो चिंगारी तो सुलगने वाली है. आप सपोर्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट करते तो आप साइड पे खड़े हो जाइए. बिल्कुल बिल्कुल. सही है, वरना हमें I'm all women power. मैम वही होना चाहिए. आज the women can change the society with our own acts. We are born with that capability, you know. We are born with that power. Like वो एक सुप्रीम पावर हम में रहता है. हम बोलते हैं ना, एक माँ है तो एक शक्ति भी है. बिल्कुल. एक ममता है, हमारे में ममता भी है, तो हम कभी काली भी बन सकते हैं. बिल्कुल बनना ही चाहिए. मैं तो बोलती हूँ जरूरत आने पे काली ही बनना चाहिए. जैसे कि जितने भी लोगों की थॉट प्रोसेसेस हैं उनको हम अपनी ही शक्ति से चेंज कर सकते हैं. और जरूरी नहीं है वायलेंट होए, साइलेंट में भी. Yeah. We have that capability. एक औरत अपने पियर की बात पियर में रखती है, ससुराल की बात ससुराल में रखती है. She has that power. तो उसके पावर को एक्सेप्ट करिए. Because you know we have that बोलते हैं ना, हमारे में एक ताकत है. हर एक औरत में ताकत है, हर एक लड़की में ताकत है. तो डरिए मत, आगे बढ़िए. मैम है, मैं हूँ, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे. हम सब आपके साथ में हैं, हम सब आपके साथ में. और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका फैक्ट आप खुद देखेंगे. जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बातें नहीं है, हम इसको सीरियसली इंटेंट और इंटेंशन के साथ करना चाहते
जाते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे नियत और नियति की, कि हम लोग हर चीज के लिए एक नियत और नियति बहुत जरूरी है। तो इंटेंट और इंटेंशन कैन चेंज द इंटायर माइंडसेट ऑफ अ पर्सन। मैम हमारे से बात करते करते 1 घंटा कैसे गुजर गया, सीरियसली मुझे तो पता नहीं चला। मुझे लग रहा है कि हम आपसे और कितनी बातें कर सकते हैं। जो चिंगारी आपने हमारे अंदर जगाई है, हमारे, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सबके आवाज बन के आपसे बात कर रही हूँ। तो आप जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को कि हम उनको इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके? बिकॉज हमारे अंदर तो बहुत मोटिवेशन आया, मेरी टीम भी बहुत मोटिवेटेड है आपसे बात करके भी, और हम जैसे भी आप हमें जोड़ सके, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विजय कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामना। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने वाले भारत माँ के वीर योद्धाओं को मेरा हार्दिक नमन। आइए हम चिंगारी को सुलगाए, अनैतिकता को समाज से दूर भगाए। चिंगारी मेरी भी सोच है, चिंगारी आपकी भी सोच है, चिंगारी हम सबकी सोच है। चिंगारी हमारी ताकत है। तो प्लीज सपोर्ट चिंगारी शक्ति फाउंडेशन एंड लेट्स एम्पावर द वर्ल्ड। मैम कुछ हमारे चैनल के बारे में आप बोलना चाहेंगे जो हम gratitude to Catapult Network and thank you so much Megha ji, Vinod ji, right? I forgot his name. Ramakant is there with us. Ramakant ji and Dinesh is there. Dinesh ji, yeah. I'm so grateful to you all guys and God bless you all. Stay safe. जरूरत हो तो घर के बाहर जाइए, नहीं तो we can go on live and do our network. Thank you so much. Yeah, and Catapult Network is the best network. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात। I'll be in touch with you. Yeah, thank you so much. Definitely, मैम प्लीज, मैं तो बहुत खुश रहूंगी बिकॉज मेरे को एक और पर्पस मिल गया ना मैम, कुछ करने का। You are one चिंगारी of ours. Yes, मैम, 100%. ये मेरा मतलब बोलते हैं ना, आप देखेंगे वो पैशन जो है टू सर्व द वर्ल्ड, टू सर्व द सोसाइटी इज देयर फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। बाकी ऑफलाइन हम लोग बात करेंगे। मेरे ऑडियंस से सिर्फ यही बोलूंगी, चिंगारी फाउंडेशन के साथ जुड़ते हैं हम लोग, और जितनी हमारे अंदर मैम ने चिंगारी भरी है, वी ऑल शुड गेट एक्टिवेटेड एंड लेट्स डू द बेस्ट इन आवरसेल्व्स। स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स। यू शुड लव योरसेल्फ. Start loving yourself, start serving the society how much you can. जरूरी नहीं है कि आप आपकी हिम्मत के हिसाब से, आप ताकत के हिसाब से शेयर करिए। ये पैंडेमिक ने हमको समझा दिया कि आपकी जरूरत बहुत छोटी है। ट्रू ट्रू, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। ये बात मैंने आपकी सुनी थी कि जरूरत छोटी है, पर हम लोग अगर इतने से उसमें हो जाए। मैम आपने कुछ बोला था इस बारे में, मैं दोबारा आपसे सुनना चाहूंगी ऑडियंस, बिकॉज़ मैंने सुना हुआ है। आई वांट यू टू टेल अबाउट दैट जरूरत के बारे में। मैम आपकी जरूरत बहुत छोटी है, छोटी सी जरूरत में आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। डोंट स्पेंड, आपकी जरूरत के हिसाब से आप रहिए। अगर आप 4 रोटी बनाते तो 2 रोटी शेयर करने की ताकत रखिए। वी नीड टू बी मोर हम्बल, वी नीड टू बी ऑन द ग्राउंड एंड लेट्स follow the humanity ground and let's make our country more peaceful. Yeah. So hope the pandemic situation जल्द ही परेशानी से बाहर निकलेंगे और एक नया भारत, एक नई सोच के साथ हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। सबके लिए एक ही इंस्पिरेशन है, लव योरसेल्फ, डू थिंग्स व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। एंड हर संडे हम एक आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आते हैं जो आपकी एक लाइफ चेंज कर सकती है। और ये स्टोरीज सुन के हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। और मेरे को जब मैं मिलती हूँ लोगों से, तो कितना कास्ट क्रीड कोई मायने नहीं रखता, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। रियल हीरोज, नो रियल हीरोज आर हियर विद अस। प्लस फ्राइडे वी विल मीट डॉक्टर अनीता 4 PM public demand pe we are getting her again. She's a gynecologist, MD. She's working with HL Hiranandani Hospital and we would like her to be with us. And थोड़ा और डॉक्टर से बात करके जो हमको मोटिवेशन मिला था उसको हम कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे को। मैम आप भी हमारे साथ जुड़िएगा
बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कैटापुल्ट नेटवर्क, थैंक यू सो मच मेगा जी, दिनेश जी, रमाकांत जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। तो फिर मिलते हैं सब फ्राइडे को। स्टे सेफ, स्टे सेफ टिल देन। चिंगारी को सुलगा के रखिए, चिंगारी को सुलगा के रखिए, हम सब के साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।